بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فنڈز کے اجرا میں تاخیر، K4 منصوبے کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ کراچی والوں کے لیے 250 ملین گیلن پانی کی دستیابی کا خواب تعبیر تک پہنچنے میں مزید وقت لگے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 16 بلین فنڈز جاری نہ کرنے پر شہری نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز میں تاخیر کے باعث K4 منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ K4 منصوبے سے کراچی کو 250 ملین گیلن پانی ملنا ہے۔ کراچی میں پانی کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ فنڈز جاری کر کے K4 منصوبے کو فوری مکمل کیا جائے۔ 4 سال قبل K4 منصوبہ وابڈا کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کے اشتراک سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا۔ 2023 میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، لیکن فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے خصوصی افراد کے 57 منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ مجموعی طور پر 7 ارب 2 کروڑ 51 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ 5 ارب 18 کروڑ 55 لاکھ روپے جاری اسکیموں کے لیے جاری کیے گئے۔ اس رقم سے کراچی، حیدرآباد، موٹیاری، دادو، بدین، سکھر اور جیکب آباد میں بحالی مرکز بنیں گے، جبکہ شہداد کوٹ، خیرپور، ناتن شاہ، ڈگری، عمرکوٹ، دوڑ اور مورو تعلیمی ادارے بنیں گے۔ کندکوٹ، شکارپور، رتو ڈیرو، میہڑ، ٹھٹھا، مٹھی، میرپور خاص، لاڑکانہ میں خصوصی افراد کے مراکز بنیں گے۔ جاری رقم سے خصوصی افراد کو تعلیم دی جائے گی، ہنر سکھایا جائے گا اور کھیلوں کے مواقع دیے جائیں گے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کارساز حادثے کیس میں لواحقین کو انصاف دلانے کے لیے ڈٹ گئے۔ کہا کہ لواحقین کو انصاف نہ ملا تو میں خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ گورنر سندھ کے گھر پہنچ کر لواحقین سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے مقدمے کی نگرانی کی اپیل کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ کارساز پر دل خراش حادثہ، لواحقین کو انصاف دلانے کے لیے گورنر سندھ میدان میں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کارساز حادثے میں جاں بحق ہونے والے عمران عارف اور بیٹی آمنہ عارف کی تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے اور لواحقین سے ملاقات کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ مرحومین کو انصاف نہ ملا تو میں خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیس کی نگرانی کرنے کی اپیل کی۔ آئی جی سندھ اور کراچی چیف سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اور میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ معاملے کی خود نگرانی کریں، اور کہیں پر یہ نظر آیا کہ انصاف نہیں ہو رہا اور ناانصافی ہو رہی ہے تو میں خود ان کے ساتھ عدالت بھی جاؤں گا۔ گورنر سندھ نے مرحوم عمران عارف کے بیٹے کو ملازمت اور مالی امداد کی یقین دہانی کرائی۔ شہریوں سے بھی اپیل کی کہ ایسی ڈرائیونگ نہ کریں جس سے کسی کی زندگی چلی جائے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں نئی بھرتیاں گریڈ 16 کے 8 انسپیکٹرز کی تعیناتیاں کر دی گئیں، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نائد حسین کو ایسٹ زون کراچی اور شہزاد لغاری کو ڈائریکٹوریٹ آف کراچی تعینات کر دیا گیا۔ ثاقب بیگم کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس لاڑکانہ اور نور مصطفیٰ کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس حیدرآباد زون تعینات کیا۔ غلام رسول کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس حیدرآباد زون اور علی گوہر خان کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس سکر زون تعینات کیا، جبکہ اقبال داؤد اور گلزی کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس حیدرآباد زون تعینات کیا گیا۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں افسران کے درمیان پسند ناپسند کے بنا پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈائریکٹر کو ہٹوانے کے لیے چیئرمین بازضد ہو گئے، لیکن صوبائی وزیر سردار محمد مہر نے صاف انکار کر دیا۔ تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں اہم انتظامی عہدوں پر تعینات افسران کی آپس میں ٹھن گئی۔ چیئرمین سید ذوالفقار علی شاہ ڈائریکٹر امتیاز علی ابڑو کو عہدے سے فارغ کرانے کے لیے ڈٹ گئے۔ چیئرمین سید ذوالفقار علی شاہ صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر کے پاس بھی پہنچے، شکوہ کیا کہ وہ ڈائریکٹر امتیاز علی ابڑو کی کارکردگی سے خوش نہیں، انہیں ہٹا کر مولا بخش شیخ کو ڈائریکٹر تعینات کیا جائے جو اہل افسر ہیں اور اس وقت محکمہ صحت میں
में स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर बराजमान हैं, लेकिन सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने साफ इनकार कर दिया। बोले एक दूसरे के शिकवे ना करें, मिलजुल कर काम करके कारकर्दगी दिखाएं। सूबाई वजीर के इनकार के बाद चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट दिल बर्दाश्ता होकर गैर मामूली सरगर्मियों तक महदूद हो गए। डायरेक्टर से कोई राब्ता नहीं किया और न ही इजलास हो सके, जिसके बाइस महकमे की तीनों कमेटियां गैर फाल हो गईं। आज़ाद नोलियो, सिटी 21। और सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज प्रोग्राम पेश हुए। उन्होंने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये सिर्फ कराची रिपोर्ट जमा कराते हैं, सिंध के दीगर अजला में कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि 4 सेंटर कराची में काम कर रहे हैं, 5वां सेंटर बन रहा है, सितंबर के वस्त में मुकम्मल हो जाएगा। दीगर अजला में भी काम शुरू कर रहे हैं। 2 माह के दौरान 150 शिकायत पर कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर मलिर ने रेती बजरी माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पुलिस कार्रवाई के लिए SSP मलिर को खत लिख दिया। खत में कहा कि रेती बजरी माफिया ने मलिर के कुदरती हुस्न और सब्जे को तबाह कर दिया है। जिले में रेती बिजली पर दफ़ा 144 नाफिस होने के बावजूद नदी नालों से रेती बजरी निकालने का सिलसिला जारी है। अदालती पाबंदी और बार बार सरकारी अहकामात के बावजूद गैर कानूनी काम जारी है। उन्होंने लिखा कि अपने ज़िला के थानों को सख्त एक्शन के लिए अहकामात जारी करें, रेती बजरी उठाने वालों को गिरफ्तार करें। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC 7 ब्लॉक D में इंतजामिया ने 40 साल पुराने वीरान पार्क को दोबारा आबाद करना शुरू कर दिया। पार्क की जमीन पर कब्जा माफिया ने जानवरों के बाड़े बना रखे थे। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन UC 7 ब्लॉक D में 1984 में बनने वाले पार्क में कब्जा माफिया ने जानवरों के बाड़े बना रखे थे। UC चेयरमैन आतिफ बकाई कहते हैं कब्जा खत्म करके अर्बन फॉरेस्ट तर्ज पे पार्क तामीर किया जा रहा है। आप ये देखिए कि हम पिछले 15 दिन से यहाँ पे शजरकारी मुहिम हमारे टाउन में चल रही है। हमारे जहन में प्लान यही है कि एक तो लॉन बनाएंगे और दूसरा जो इसके दरख्त हैं वो सारे महफूज रखेंगे। सिर्फ एक कीकर के दरख्त और जो रास्ते में काम में रुकावट है उसकी भी शाखें ट्रिमिंग की इजाज़त है, बाकी और कोई किसी दरख्त को नहीं छेड़ा जाएगा और मजीद दरख्त प्लांटेशन यहाँ पे की जाएगी। पार्क की बहाली के इक़दाम पर इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार तो किया, लेकिन खदशा भी जाहिर किया कि देखभाल ना होने से ये दोबारा जराइम पेशा अफराद का मस्कन बन सकता है। हमारी जो ख्वाहिश है कि अच्छा है पार्क बन जाए, लेकिन पार्क बन गया, सपोज पार्क बन गया तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि अक्सर सुना कि चरसी मवाली का बसेरा हो जाता है और घर अनसेफ हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं यहाँ काफ़ी अरसे से रहता हूँ, तकरीबन 50 साल हो गए। आज से तकरीबन 40 साल पहले ये पार्क बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद से ये बंजर है। सबसे पहले तो मैं हमारे UC 7 के जो नादिम हैं आतिफ बकाई साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ काम शुरू कराया। शहर में पार्कों की तामीर खुशाइंद है, जहाँ निगरानी और मौसर देखभाल से ही इन पार्कों की पायदारी को बरकरार रखा जा सकता है, मगर बरसों से ये अमल दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने हब में मोबाइल रजिस्ट्रेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत को तरजीह दी है। ये इकदाम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की खवातीन के लिए उठाया गया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। हब की खवातीन की मुश्किल आसान हो गई क्योंकि अब BISP की रजिस्ट्रेशन दहलीज पर होगी। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने हब बलूचिस्तान में मोबाइल वैन्स सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमारा सबसे बड़ा काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। लोगों ने इसे खत्म करने की बहुत कोशिश की, खत्म ना हुआ तो नाम तब्दील कर दिया। मैं समझती हूँ कि खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में किया गया है। ये सिर्फ मुआशी तौर पे खवातीन की जो है मदद नहीं करता, ये खवातीन को एक बाइख्तियार जो है मुकाम देता है। बहुत कोशिश की गई कि इस प्रोग्राम को सबोटाज किया जाए, इसको किसी तरीके से बंद किया जाए, या और अगर कुछ नहीं हो सकता तो इसका नाम बदल दिया जाए। एक पैरेलल प्रोग्राम इसके
चलाने की कोशिश की गई। इस मौके पर वजीर आला बलोचिस्तान के मुशीर मीर अली हसन बोले कि हम हब के बाद गवादर व दीगर अजला के लिए भी काम करेंगे, जिसके लिए प्लान बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हमारा प्लान है ग्वादर का, तुर्बत का, पूरे बलूचिस्तान का। ऑलरेडी कोटिया वो खुद कर चुकी है, वहाँ से होके आई है। हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो भी मैडम के पास जो टाइम होगा, हम मिल के इंशाअल्लाह ताला हर 3 डिस्ट्रिक्टों पे जाएंगे। आज अवरान डिस्ट्रिक्ट है, बेला डिस्ट्रिक्ट है, अपना हब डिस्ट्रिक्ट के लिए तीनों डिस्ट्रिक्ट हम साथ रखें। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जिला हब के लिए 4 रजिस्ट्रेशन वैन्स की इफ्तिताह की है, जो गडानी, विंदर, दरेजी और हब सिटी में सर्वे करेगी। ये वैन्स घर घर जाकर खवातीन को BISP में रजिस्टर्ड करवाएंगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बच्चों में जहनी अमराज की शरह में इजाफा होने लगा। माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। बच्चों में चिड़चिड़ापन हो तो फौरी चेकअप करवाएं। तफसीलात हम जानेंगे इब्राहिम रिन की रिपोर्ट में। खेल कूद में कमी और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल वालिदैन के लिए ख़तरे की घंटी। बच्चों में जहनी इमराज की शरह बढ़ने लगी। बच्चों की माहिर नफ्सियात डॉक्टर मारवी सोमरो का कहना है कि चंद बरसों के दौरान बच्चों में जहनी इमराज की शरह में बेहद इजाफा हुआ है। वालिदैन की बड़ी तादाद अपने बच्चों को SICHN हॉस्पिटल में ला रही है, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। अभी तक हमने तकरीबन 8000 मरीज़ों को देखा है, उनको असेस किया है। बेसिकली हमारे पास जो न्यूरोलॉजी OPD होती है, वहाँ पे से हमारे पास पेशेंट रेफ़र होते हैं, डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट के पास होते हैं। माहिर नफ्सियात उनको लेटेस्ट साइकोमेट्रिक बैटरी से असेस करते हैं। डॉक्टर मारवी सोमरो ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं, जिस पर सारा दिन बच्चे मसरूफ़ रहते हैं और मोबाइल मांगने पर शदीद गुस्से का इजहार करते हैं। ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं। मोस्टली जो होती है वो होते हैं कि बच्चा नाम पे मुतवज्जा नहीं हो रहा, आप उनका नाम बुला रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं। चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत है, बच्चे मार रहे हैं एक दूसरे को। स्कूल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, स्लो लर्नर है, तवज्जो नहीं दे रहा पढ़ाई में और ध्यान बटा हुआ है बच्चे का। मोबाइल मांगता है, अगर पेरेंट्स दे देते हैं और अगर वापस मांग रहे होते हैं तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने वालिदैन को मारने पर आ जाता है। माहिर नफ्सियात का कहना था कि आज के दौर में बच्चों में खेल कूद का रुझान कम हो रहा है। बच्चों को खेलने कूदने का वक्त भी दिया जाए ताकि उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर रहे। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। कराची के सेंट जोसेफ कॉलेज में रूसी फ्लैग डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में रूस के खूबसूरत सियाहती मकामात से मुतल्लिक शुरका को आगाह किया गया। सैयद जुबार राशिद की रिपोर्ट देखिए। रूस दोस्ती जिंदाबाद। रशियन फ्रेंडशिप हाउस के ज़ेरे एहतमाम फ्लैग डे की तकरीब सेंट जोसेफ कॉलेज में सजाई गई। इस मौके पर असातिज़ा, तुलबा और रूसी वफ्द भी मौजूद था। रशियन फ्रेंडशिप हाउस के डायरेक्टर और रूसी वफ्द के नुमाइंदगान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के बिरादराना ताल्लुकात हैं। खुशी की बात है कि कुछ रोज कबल पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया और आज अगस्त के ही महीने में अपने मुल्क का फ्लैग डे मना रहे हैं। People of Pakistan see Russian flag, they should know that we are not enemies, we are friends, big friends of Pakistan. So, and I really respect Pakistani national symbols, and I just want to share some information about our national symbols. Vladimir Putin and as the Prime Minister of Pakistan met each other in July of this year. And it is a good tendency. Also, we have a good relationship in the military sphere. रूस से आए वफ्द में शामिल माइकल ने रूस की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की। Cooperation organization as well as within the framework of mechanism to facilitate the Afghan settlement, such as the Moscow format of consultation and the regional quartet. सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर एलिजाबेथ ने रूसी वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। Your efforts in making this part of the event interactive and educational were truly commendable. I would also like to extend my heartfelt thanks to Mr. Lucien Brocco
the director of the Russian Friendship House in Karachi. तकरीब में क्विज मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया। रूसी वफ्द ने शुरका को रूसी जामियात में फ्री स्कॉलरशिप से मुतल्लिक आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन साउथ ऑफिस प्राइमरी की जानिब से क्लिफ्टन दो तलवार से जमजमा पार्क तक रैली निकाली गई, जिसमें डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स यार मोहम्मद बालादी ने खुसूसी शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल्स को आगे बढ़ाने का मिशन। डिस्ट्रिक्ट साउथ के असातिज़ा और तुलबा शाना बशाना खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस प्राइमरी साउथ कराची के ज़ेर एहतमाम दो तलवार क्लिफ्टन से जमजमा पार्क तक एनरोलमेंट और रिटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा व तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असातिज़ा का कहना था कि एनरोलमेंट ड्राइव का मकसद सरकारी स्कूलों में दाखिलों के रुझान को बढ़ाना है। इसका मकसद एनरोलमेंट बढ़ाना है। बच्चों के और दाखिला मुहिम के सिलसिले में ये रैली निकाली गई है। हमें बहुत खुशी हुई है कि रैली का इनेकाद डिफेंस से किया गया है, यानी डिफेंस टू लियारी। हमें बच्चों के दाखिले में इजाफा करना है। मैं समझती हूँ बच्चों से ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है उनके पेरेंट्स को। उनको ये इम्पोर्टेंस बतानी है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके ज़रिए आप ज़िंदगी के तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक शो केस है। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स यार मोहम्मद बालादी बोले कि एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज डिस्ट्रिक्ट मलीर से वजीर तालीम ने किया, जो तमाम तालुका डिस्ट्रिक्ट्स तक फैलेगी। हमारी ये रैलीज का जो पहले इफ्तिताह किया था बाकायदा हमारे मिनिस्टर एजुकेशन साहब ने मलीर डिस्ट्रिक्ट से किया था, तो अभी हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये रैलीज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हम पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन करवाएं, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन हम देंगे। रैली के मौके पर तलबा ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्कूलों में किताबों की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ किया। और हमारे स्कूल में बुक्स भी अभी तक तकसीम नहीं की गई है कि हुकूमत से गुजारिश है कि हमें बुक्स की थोड़ी रवानी चाहिए कि हम ताकि पढ़ सकें। बगैर किताबों के किताबें नहीं होंगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और हमारा टाइम ऐसे ज़ाया होगा। हम गवर्नमेंट से हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हमें किताबें दें। रैली में डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स यार मोहम्मद बालादी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरवत अजहर, DO लियाकत अली और DC साउथ ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अपनी जदीद डिजिटल ऐप मुतारिफ करा दी, जो सार्फिन के लिए इंश्योरेंस खदमात को मजीद आसान और काबिल रसाई बनाएगी। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। जदीद दुनिया की जानिब एक और कदम। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की नई ऐप खिदमात को डिजिटल दौर में ले आई। कराची के मुकामी होटल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी डिजिटल ऐप मुतारिफ करा दी। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल बोले कि हुकूमत निजकारी के मामलात में फाल है। स्टील मिल की निजकारी एक पेचीदा अमल है और PIA समेत दीगर इदारे भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली का बोझ सार्फिन पर डाल रही है और कराची के लिए बिजली के निर्खों पर वफाकी काबीना में बातचीत जारी है। बिजली महंगा होना क्योंकि उसका कंपोनेंट जो है पूरे मुल्क में हो रहा है, तो उसका असर के इलेक्ट्रिक पे भी आ रहा है, जो कि उसका पास ऑन सिस्टम मेरे ख्याल ज़्यादा अपने कंज्यूमर पे कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को अब ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली हमारी जब एनर्जी मिनिस्ट्री में और काबीना में भी इस सब्जेक्ट को लाया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के हिदायत के साथ साथ मिनिस्टर फॉर जो हमारे एनर्जी हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने खुद पर्सनली इस चीज़ को परसू भी किया है, मुलाकातें भी की हैं और इंशाल्लाह इसका जल्द हल भी आप देखेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट लाइफ शुएब जावेद ने बताया कि सिंध के अलावा मुल्क भर के 18 करोड़ पाकिस्तानी सेहत सहूलत कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची के सार्फिन को भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। If you look at it, ये टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की कवर हो रही है, इट्स 180 मिलियन पीपल, यानी कि 18 करोड़ पाकिस्तानी। सिंध में भी ये थरपाकर जो हमारा एरिया है, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। सेहत सहूलत कार्ड के तहत 10 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ये सहूलत सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए दस्तयाब है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 पैसे महंगा 278 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये पर बरकरार। यूरो 69 पैसे, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये 92 पैसे महंगा हो गया। माहिरीन कहते हैं कि दरामदे बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 52 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये की सतह पर बरकरार है।
ओपन मार्केट में यूरो 69 पैसे इजाफे से 311 रुपये 19 पैसे और बरतानवी पाव ₹1.92 इजाफे के बाद 365 रुपये 79 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में UAE दिरहम 76 रुपये 22 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपये 22 पैसे पर बरकरार है। इलेक्शन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, शफाफियत और कम लागत भी एसोसिएशन के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोट के जरिए कराना मुमकिन हो गया। काटी की स्टार्टअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की चेयरपर्सन माहीन सलमान ने कहा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के तलबा की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक वोट सॉफ्टवेयर बना लिया है। इलेक्शन में इस वक्त इस जदीद सॉफ्टवेयर से लागत कम की जा सकती है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। में शफाफियत और स्पीड एक साथ कैसे मुमकिन हो, सर सैयद यूनिवर्सिटी के तलबा ने हल निकाल लिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल टीम की जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इलेक्शन कराने के लिए ब्रीफिंग। काटी की स्टार्टअप चेयरपर्सन माहीन सलमान ने कहा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के तलबा ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से लागत भी इंतहाई कम हो सकती है। इलेक्शन में धांधली का इल्जाम भी इस सॉफ्टवेयर से खत्म हो सकता है। जो ट्रांसपेरेंसी ये सिस्टम प्रमोट कर रहा है, आई विश ये हमारे मुल्क में भी आए और आइंदा हमारे इलेक्शंस जो हैं वो इन्हीं बच्चों के सिस्टम के ऊपर हों। और जो ये इस वक्त तमाम एसोसिएशंस के अंदर एप्लीकेबल है, तमाम आपका CDC है, स्टॉक एक्सचेंज है, आप बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी आपके इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल है। इसका कोर कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे लिए मतलब बहुत अप्रिशिएट मैं उसको करती हूँ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपको पता है सारे इविल्स जो है हमारी सोसाइटी के सोशल इविल्स इधर से ही जनरेट होते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी के टीम लीडर ने बताया कि इस जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सॉफ्टवेयर की फी वोटर लागत सिर्फ 100 रुपए है, जबकि आम तौर पर इसकी लागत कहीं ज्यादा होती है। जी बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाए हुए और वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर सपोज 4,000 मेंबर्स है तो इस राउंड मैक्सिमम पर वोटर 100 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी, जो बेसिकली हमने काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पे करनी होगी। और कॉस्ट इफेक्टिव है, पेपरलेस है, हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है। बंदे को ट्रैवल ही नहीं करना कि आपके पास बंदा वहीं बैठे बैठे वोट को कास्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फरोग और नए और जदीद सॉफ्टवेयर बनाकर कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है, जो मईशत को नई सिमत देगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। माली साल 2024 से 25 में विफाकी हुकूमत का मालियाती खसारा 8,500 अरब रुपए रहने की तवक्को की है। रवां माली साल में विफाकी हुकूमत मजमूई मकामी तौर पर 7,800 अरब रुपए का कर्ज लेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। माली साल 2024-25 में हुकूमत का कर्ज लेने का प्लान। रवा माली साल वफाकी हुकूमत का मालियाती खसारा 8,500 अरब रुपए होने की तवक्को। खसारा हुकूमत मुकामी ज़राए और बैरूनी कर्ज लेकर पूरा करेगी। आरिफ हबीब रिसर्च ने हुकूमत के मालियाती खसारा पूरा करने के प्लान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में वफाकी हुकूमत मुकामी तौर पर 7,800 अरब रुपए का कर्ज लेगी। इसमें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से 5,400 अरब रुपए का कर्ज लेने का प्लान भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का कर्ज के लिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर फोकस बढ़ गया। नए माली साल में बैरूनी कर्ज 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के करीब लेने का प्लान है। इस बैरूनी कर्ज में मल्टीलैटरल फंड्स की मद में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर आने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के रवा माली साल में बैरूनी कर्ज पाकिस्तानी रुपए में 666 अरब रुपए लेने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। अब तक के लिए इतना ही।